So we will be starting with the magnetic effect of electric current chapter. Now इस chapter पूरा chapter बहुत essential है, बहुत ही important है और simple भी है at the same time. So सबसे पहले तो जो आपको पता रहना चाहिए कि magnetic field lines क्या होती हैं. That is, what are magnetic field lines. तो आपको ये जो magnet है इसके around में दिख रहा होगा कि ये जो आयरन फाइलिंग्स हैं एक स्पेसिफिक एरिया तक ही आयरन फाइलिंग्स प्रेजेंट है, उसके आगे आयरन फाइलिंग्स प्रेजेंट नहीं है, दे आर नॉट ओरिएंटेड. तो ये जो एरिया है जहाँ पे आप मैग्नेट का इफेक्ट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और जहाँ पे आप मैग्नेट का इफेक्ट फील कर सकते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. And this area is represented by some lines. These are imaginary lines. और इन imaginary lines को हम बोलते हैं magnetic field lines. Okay? इन imaginary lines को हम क्या बोलते हैं? Magnetic field lines. तो आप यहाँ देख रहे हो, this is the magnetic field lines of bar magnet. Please make a note. This is the north pole of the bar magnet. This is the south pole. Magnetic field lines are moving from north towards south pole in this direction. Arrows are very very important. अगर आप arrows नहीं बनाओगे तो you will lose your marks. So arrows are very very essential. So this diagram please everyone practice. The field lines around a bar magnet. So inside the bar magnet, the magnetic field lines are moving from south towards north and outside they are moving from north to south direction. Please remember. Next we have properties of magnetic field lines. So the first property of magnetic field lines that you have to remember is that magnetic field lines they never intersect each other. जो दो magnetic field lines हैं across a bar magnet or anywhere, तो ये जो magnetic field lines होती हैं ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इधर से जा रही हैं, ये इधर से जा रही हैं, तो ये कभी ऐसे नहीं आएगी. दे विल नेवर इंटरसेक्ट. बिकॉज अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में भी नॉर्थ है और इस डायरेक्शन में भी नॉर्थ है, एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल. वी हैव ओनली वन नॉर्थ डायरेक्शन. सो एज वी हैव वन नॉर्थ डायरेक्शन, उसकी वजह से कभी भी लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ द डायरेक्शन. डायरेक्शन जो है आउटसाइड द मैग्नेट, हम डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन इज़ फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ. प्लीज़ रिमेंबर, वेरी वेरी एसेंशियल. नाउ जब आपने देखा बाहर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ साउथ एंड दिस इज़ नॉर्थ, तो ये ऐसे जा रही है बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ. तो हर एक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इट इज़ मेकिंग अ क्लोज्ड कर्व. Okay, so this is the third property, that magnetic field lines are making or forming closed curves. Now next we have on the last property is the strength of magnetic field lines. Strength of magnetic field lines आपको पता चलती है by the degree of closeness of the magnetic field lines. For example, इस point में you will see more close magnetic field lines. बहुत ज़्यादा magnetic field lines हैं यहाँ पे. तो इसका मतलब क्या है? Maximum strength is at this point, that is near the poles. जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाएंगे you will see that magnetic field lines are getting distant from each other. So this shows that the magnetic field strength is lesser as you move away from the magnet, and it is maximum at the poles, north pole and south pole, because यहाँ पे सबसे ज़्यादा चिपकी हुई है magnetic field lines. They are very close to each other. Next we have is right hand thumb rule. Very simple. Take your right hand forward और उसको thumbs up के position में रखो, and you place it in thumbs up position in such a manner that you are holding the current carrying conductor in your hand as shown in the picture. तो इसे हम बोलते हैं right hand thumb rule. इस rule में जो हमारा thumb होता है वो denote करता है direction of current. ठीक है, जब भी आप ऐसे अपना हाथ रखोगे तो आपका जो थंब है वो डिनोट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, और आपकी ये जो चारों कर्ल्ड फिंगर्स हैं, all the four curled fingers, they are denoting direction of magnetic field
लाइन्स, ये आपको क्या बता रही हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता रही हैं। तो फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो डायरेक्शन है इन विच द करंट इज मूविंग इज फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड, ये कैसा है? ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यू विल सी दैट ऑन एप्लीकेशन आपकी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल हो रही हैं इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द magnetic field lines is from here to here, which is your clockwise direction. And always remember, across a straight conductor, if we are having a straight current carrying conductor, magnetic field lines around it are in concentric circles. Like this, magnetic field lines will be formed, okay. And how to find the direction? With the help of right hand thumb rule. आप right hand thumb rule लगाइए, आपका जो थंब है वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। तो जब आप ऊपर के डायरेक्शन में अपने थंब को पॉइंट करेंगे, यू विल सी दैट आपके फिंगर्स अंदर की तरफ कर्ल हो रहे हैं टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ओके। ऑन द अदर हैंड, इफ़ इट इज़ मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर करंट नीचे जा रहा है तो आप अपने थंब को नीचे के डायरेक्शन में पॉइंट आउट कीजिए, एंड देन यू विल सी दैट जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर मूविंग इन एंटी क्लॉक, दे आर मूविंग इन clockwise direction. First one is anti-clockwise, next it will be clockwise. Again circles, it will be concentric circles. The direction will be the shape will be concentric circles, but the direction will be reversing in this second case, okay. So this is the way through which you can apply right hand thumb rule. So very, very essential, different types of current carrying conductors and how those current carrying conductors will be having magnetic field lines around them. So first example is of straight current carrying conductor. आप देख रहे हो यहाँ पे जो करंट है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, अप्लाई right hand thumb rule, and you will find the direction in which the magnetic fields are moving. Second important चीज़, magnetic field lines यहाँ पे जो है वो concentric सर्कल्स बना रही हैं, ठीक है। एंड फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगी। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज़ करनी है तो फर्स्ट फैक्टर होगा बाय इंक्रीजिंग दी आई, दैट इज़ करंट। आप करंट इंक्रीज़ कर दीजिए, व्हेन यू इंक्रीज द करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज द डिस्टेंस, जितना ज़्यादा आप इसके पास आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पास आएंगे, उतना ज़्यादा आपको मैग्नेटिक इफेक्ट फील होगा। ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट जिसको आप लेकर आ रहे हैं उसको फील होगा। जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। सो बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस, दीज आर द टू फैक्टर्स थ्रू विच यू कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. Now next we have is circular loop. How this magnetic field lines are produced across a circular loop. ये बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको स्ट्रेट कंडक्टर को एक सर्कल में बनाना है, एक लूप बनाना है लाइक दिस, और उसके टू एंड्स को आपको कनेक्ट करना है विद दी बैटरी. दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव. आपको पता है करंट and we know that current flows from positive towards negative direction like this. Now at each point you apply Fleming's right hand thumb rule. आपको क्या लगाना है? right hand thumb rule लगाना है इस A पॉइंट पे, B पॉइंट पे और C पॉइंट पे. तो जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्मेशन होगा इन दिस डायरेक्शन, एंड एट दिस साइड ऑल्सो यू विल सी कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्मेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड एट पॉइंट B ये जो सर्कल है ये स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो जाएगा. तो जैसे जैसे आप ये क्लोज़र जाएंगे, ये लोग एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी क्लोज़र टू ईच अदर. दे विल बी फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन इन दी मिडल. इज इट क्लियर? सो दिस इज़ हाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म्ड अक्रॉस अ सर्कुलर लूप. अभी
फैक्टर्स जिस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड करता है इन द केस ऑफ सर्कुलर लूप, सबसे पहला फैक्टर है करंट. You increase the current. When you increase the current, magnetic field lines will increase. Second factor है by increasing the number of turns. ठीक है, ये जो सर्कुलर लूप है आप इसके नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दीजिए. तो जब आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो भी n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. सो दीज आर टू वेज, बाय इंक्रीजिंग द करंट एंड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू अ सर्कुलर लूप. नेक्स्ट वी हैव सोलिनॉइड. सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए सोलिनॉइड होता क्या है. सोलिनॉइड इज नथिंग बट व्हेन यू टेक अ वायर, मेटालिक वायर, एंड आप उसको बहुत ही क्लोजली रैप करते हो लाइक दिस. आप ऐसे उसे रैप करते हो इन सच अ फैशन दैट इट फॉर्म्स अ सर्कुलर, इट फॉर्म्स अ कॉइल, सिलेंड्रिकल कॉइल लाइक दिस. ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं सोलिनॉइड. So the definition of solenoid will be a coil of wire bound across So the definition of solenoid will be, it's a coil containing many circular turns. So it's just like a circular loop जिसको हम एक सिलेंडर के फॉर्म में अरेंज करते हैं. circular turns. These wires are wrapped closely in the shape of cylinder. तो इसे हमने सिलेंडर के शेप में टर्न किया है like this as you can see in the photo. अभी मैग्नेटिक जो ये हमारा सोलिनॉइड है, it just behaves like a bar magnet. इसका जो behavior है it is similar to the bar magnet and you will see that यहाँ पे भी क्या है, देखो आप यहाँ पे फोटो में क्लियरली देख सकते हो. स्ट्रेट, अंदर बीच में स्ट्रेट है और बाहर की तरफ इट इज़ मूविंग लाइक दिस. ओके, इन बोथ दी डायरेक्शन इट इज़ गोइंग लाइक दिस. सो दिस सिंपली मीन्स दैट ये जो है ये नॉर्थ साइड है, ये जो है वो साउथ साइड है. बिकॉज वी नो दैट वी हैव सीन द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, दे मूव फ्रॉम नॉर्थ साइड टूवर्ड्स साउथ साइड. तो ये वाला जो साइड है वो नॉर्थ साइड है, इट इज़ एक्टिंग लाइक अ नॉर्थ साइड एंड दिस साइड इज़ एक्टिंग लाइक अ साउथ साइड. सोलिनॉइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डायग्राम हमेशा आता है तो आपको इसका डायग्राम अलॉन्ग विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको आना चाहिए. तो दिस इज़ सोलिनॉइड. ओके, नाउ सोलिनॉइड में कभी कभी स्ट्रेंथ पूछते हैं. वेयर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ maximum strength will be present in the case of solenoid. For example, if an object is kept here at point A, at point B and at point C. So अगर आप देखेंगे point A में ये जो हमारा object है it is present inside the solenoid and inside the solenoid जो magnetic field lines हैं they are uniform, they are parallel to each other. As they are uniform and parallel to each other, this area will have maximum strength of magnet, or it will be having maximum magnetic strength. Then this area B will have second after A. B will be having the strength of maximum strength of magnet and then last it will be C. जैसे मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है. मैक्सिमम होगी इनसाइड दी सोलिनॉइड. अभी बात की जाए स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इन अ सोलिनॉइड, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. सबसे पहला फैक्टर नंबर ऑफ टर्न्स. मोर द नंबर ऑफ टर्न्स,
more or greater will be the magnetic field line. Second, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है, it depends upon the strength of current. करंट बढ़ाओगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज होंगी. एंड थर्ड फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है, दैट इज़ दी कोर मटेरियल, नेचर ऑफ कोर मटेरियल. जो कोर मटेरियल है उसके नेचर पे डिपेंड करता है. अगर आप सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हो, इन दिस केस इनसाइड द सोलिनॉइड, यहाँ पे अगर आप एक सॉफ्ट आयरन डालते हो, here if you put a soft iron and you use a soft iron, in that case the magnetic strength will be maximum. ठीक है, सॉफ्ट आयरन के केस में. सो दिस इज़ वेरी एसेंशियल. समटाइम्स व्हाट वी डू इज इनसाइड द सोलिनॉइड वी इंसर्ट अ सॉफ्ट magnet. Now sometimes what we do is inside a magnet we insert a iron. Sometimes what we do is inside this we insert a magnet inside the solenoid. तो जब आप magnet को उसके अंदर, sometimes what we do in this solenoid is we insert a piece of metal inside it. और ये जो metal है, as it is coming under the influence of these magnetic field lines, ये जो मेटल है इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड. ये मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है. एंड एज इट इज़ एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट. इट इज़ अ टेम्पररी मैग्नेट. जब तक करंट आएगा तब तक वो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा. जैसे ही आप करंट बंद कर देंगे इट विल स्टॉप बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. सो दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपको चाहिए सॉफ्ट आयरन. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट वी हैव इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. आप अपने लेफ्ट हैंड को बाहर की तरफ निकालिए और जैसा फोटो में दिखाया है उसे वैसे प्रोजेक्ट कीजिए. नाउ यू विल सी दैट इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपका जो थंब है वो डिनोट करता है, इसको देखो, सिंपल वे टू रिमेंबर इज FBI. इट्स लाइक अ गन. ओके, FBI. तो F आप लिखो थंब पे, B लिखो आप अपने इंडेक्स फिंगर पे, I लिखो मिडिल फिंगर पे. सो F का मतलब होता है फोर्स. तो जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स देता है. थंब आपको क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स. किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा. आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो है B, दैट इज़ वो आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. देन आपका जो मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करता है करंट को. दैट इज़ इट टेल्स यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा. दिस इज़ योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. एज पर व्हाट इज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन यू कैन अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर, बाकी हर केस में आप फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, बट इन द केस ऑफ व्हेन दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट दी फोर्स, कहीं पे भी अगर फोर्स पूछा है along with the magnet, in that case only you will be applying left hand rule. Last topic of this chapter is domestic electric circuit. Very easy and important chapter at the same time. Just remember, हमारे घर में जो आप इलेक्ट्रिक पावर रिसीव करते हो that is of 220 वोल्ट और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़. ठीक है, हमारे घर में जो AC सर्किट में जो आता है इलेक्ट्रिक पावर आता है दैट इज़ ऑफ 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज़ ऑफ 50 हर्ट्ज़. और उसे 3 डिफरेंट वायर्स में वो पास होता है. 3 कलर्स की वायर्स होती हैं. पहला है लाइव वायर जो रेड कलर का होता है. लाइव इज़ द साइन ऑफ लिविंग बीइंग्स आर रेड इन कलर विच इज़ पॉजिटिव इन नेचर. देन अर्थ वायर है. अर्थ वायर आर इंसुलेटेड ग्रीन. अर्थ का कलर ग्रीन होता है. दे आर ग्रीन. दे आर यूज्ड फॉर अर्थिंग. और न्यूट्रल वायर, then we have neutral wire which is black in color and it is connected to the negative terminal. Okay, so in this manner you have to remember live wire, neutral wire and earth. लाइव वायर जो है वो रेड कलर का होता है, पॉजिटिवली चार्ज.
अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है, इट इज़ फॉर द सेफ्टी पर्पस। एंड देन जो न्यूट्रल वायर है वो ब्लैक कलर का होता है, दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। नाउ समटाइम्स हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज ये सिंपल है। तो शॉर्ट सर्किट कब होता है? शॉर्ट सर्किट तब होता है जब आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को सडनली टच करे। कभी कभी वायर्स लूज़ हो जाते हैं या फिर उनकी जो इंसुलेशन है, उनके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग है वो निकल जाती है। तो ये वायर्स अगर एक्सीडेंटली एक दूसरे को टच कर जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो स्पार्क रिलीज़ होने लगता है एंड इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ओके, देन आफ्टर दैट वी हैव ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब होता है जब आप एक सॉकेट में, इन वन सॉकेट, एक सॉकेट में आप मोर देन 2 और 3 अप्लायंसेस कनेक्ट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग, विच इज़ कॉज ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ वायर। ठीक है, तो वायर की जब ओवर हीटिंग हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है? ओवरलोडिंग। ठीक है, यू कैन सी हियर ओवर हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर इन एनी सर्किट ड्यू टू लार्ज फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। अभी ओवर हीटिंग तभी होगी, आपने पढ़ा हुआ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। तो more the amount of current flowing across it, more will be the heat produced. So overloading is the cause. Overloading is caused by heating of wire, which is further caused by increase in the amount of current flowing across it. Then we have electric circuit. Electric circuit is a protective device जो हम लगाते हैं अपने MCBs में, ठीक है, अपने मेन सर्किट में, जो आपको प्रिवेंट करता है फ्रॉम दी sudden flow of excess amount of current in the home appliances. So with this हमारा ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हो गया है ख़त्म। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से रिवाइज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रिसिटी में देर आर सर्टन फार्मूलाज दैट यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट फार्मूला है करंट का। करंट इज़ डिनोटेड बाय आई। ठीक है, हम करंट को I से डिनोट करते हैं एंड द फॉर्मूला फॉर द करंट इज I इज इक्वल टू Q बाई T। I का SI यूनिट इज एम्पियर विच इज़ डिनोटेड बाय A एंड जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द करंट इज एमीटर। ऑलवेज रिमेंबर एमीटर को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। देन वी हैव चार्ज। चार्ज इज डिनोटेड by Q and Q is equal to Ne, okay, where N is the number of electrons and E is the charge on one electron and the SI unit of charge is coulomb. Then we have potential difference. Potential difference को हम V से denote करते हैं। The formula for potential difference is V is equal to W by Q. V is the SI unit of potential difference is volt. It is measured by voltmeter और voltmeter को हम connect करते हैं in the circuit in the parallel fashion. Then we have Ohm's law. According to Ohm's law, V is equal to IR. कोई unit नहीं है, V is volt, I is current and R is resistance here. This is your Ohm's law. This happens at constant temperature. Then we have resistance. Resistance का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला तो आप V इज इक्वल टू आई आर से निकाल लोगे। V इज इक्वल टू आई आर, देन R इज इक्वल टू V बाई आई। दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्मूला एंड द सेकेंड फॉर्मूला इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब फॉर्मूला निकालोगे तो यू विल गेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए एंड रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है दैट इज़ ओम और इसे हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, आप मतलब चेंज कर सकते हो रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ अ रियोस्टैट। नाउ रेजिस्टेंस को या तो सीरीज़ में कनेक्ट किया जाएगा या तो पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। जब आप सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हो तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्विवेलेंट टू R1 प्लस R2 प्लस R3। If it is connected in parallel, total resistance will be 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तीनों केसेस में, दोनों केसेस में रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो होगा ओम।
Then we have Joule's law of heating. According to Joule's law of heating, H is directly proportional to I square RT. Okay, and the formula that you get is I square RT. This is the formula of Joule's law of heating. जब आप I को replace करोगे तो you will get one more formula that is V square T by R. तो इसी फॉर्मूले को आप इंटरचेंज कर रहे हो. I में आप ओम्स लॉ लगा के V by R के फॉर्म में आप उसे निकालो, you will get the another formula. And the SI unit for heating effect is Joule. As heat is an energy, heat energy, और energy का unit होता है Joule. Then we have power. Power is equal to rate of doing work, that is work done by time. तो फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. नाउ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन आप V इंटू आई को चेंज कर सकते हो. अगर V की जगह I और R दिया है तो आप इसको चेंज कर लो by applying Ohm's law. So whatever is given in the question, you can change the formula. So we have three formulas: P is equal to V into I, P is equal to I square R, and P is equal to V square R. So these formulas you will use depending upon what is given in the question. And the SI unit is watt. The SI unit of power is watt. So this is the formula. Take a screenshot of this and memorize it. Write it 5-6 times and by heart it. Now the next topic that we have is Ohm's law. So Ohm's law is very simple. It is the relation between potential difference, that is V and I. And always remember, in the case of Ohm's law, potential difference is directly proportional to current at constant temperature. सिंपल वे में आप याद रखो. वैसे डेफिनेशन आने के चांसेस कम है, बट आपको पता रहना चाहिए व्हाट इज़ ओम्स लॉ. इन केस असर्शन रीजन में आ गया या फिर MCQ में आ गया तो यू शुड बी एबल टू नो इट. ओके, सो ओम्स लॉ इज potential difference directly proportional to the current at constant temperature. This is the graph of the Ohm's law, very important. You can see here, आप यहाँ पे x एक्सिस में करंट को डिनोट करेंगे, y एक्सिस में आप पोटेंशियल डिफरेंस को करंट करेंगे, और ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है दैट इज़ योर v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i. जब आप ओम्स लॉ को सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है v इज़ इक्वल टू आई आर. और ये जो लाइन है यहाँ पे, जो स्ट्रेट लाइन है, ये आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देती है. इट टेल्स यू अबाउट रेजिस्टेंस. अगर कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, तो ऑलवेज रिमेंबर ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस विल बी टेलिंग यू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. तो स्ट्रेट लाइन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप v बाय आई कर लो. v का वैल्यू डिवाइडेड बाय i का वैल्यू, आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन. तो एक बार मैं डायग्राम बना देती हूँ पैरेलल का और सीरीज का. दिस इज R1, R2 and R3. So these resistors they are connected in सीरीज़. जो अगर एक के पीछे एक कनेक्टेड है तो उन्हें बोलेंगे सीरीज़ कनेक्शन. अगर एक ही पॉइंट से, पॉइंट ए और बी, इन दो पॉइंट से अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, तो उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस. ठीक है, जैसे यहाँ पे R1, दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ R3. तो आप देखोगे इन दो पॉइंट्स के बीच में 3 रेजिस्टेंस हैं और ये एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड हैं. तो दिस इज़ नोन एज पैरेलल रेजिस्टेंस. ओके, नाउ ऑलवेज एंड इन होम अप्लायंसेस, इन होम इलेक्ट्रिक सर्किट्स वी प्रेफर पैरेलल रेजिस्टेंस बिकॉज देर आर सर्टन रीजन्स फॉर दैट. पहला रीज़न तो ये है, इन द केस ऑफ सीरीज़ अगर मान लो मेरा R2 अप्लायंस ख़राब हो गया तो अभी करंट तो हमेशा इसी डायरेक्शन में जाएगा, सिंगल पाथवे में पाथवे में जाएगा. तो अगर मेरा R2 ख़राब हो गया या मेरा R3 ख़राब हो गया तो जो मेरा सर्किट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा वहीं पे भी. नाउ इसके आगे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा. बट इन द केस ऑफ पैरेलल दिस डज नॉट हैपन. यहाँ पे करंट आएगा I. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, अक्रॉस R2 सम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो एंड अक्रॉस R3 सम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा R2 ख़राब हो गया तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, बट करंट यहाँ और यहाँ से फ्लो करेगा फ्रॉम R1 एंड फ्रॉम R3. अगर R1 ख़राब हो गया तो करंट विल फ्लो फ्रॉम R2 एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम R3. तो मेरे बाकी अप्लायंसेस प्रॉपरली काम करेंगे इन द केस of parallel combination. Okay, now
डिफरेंसेस, अभी देखो ये तो फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड पॉइंट है डिफरेंट अप्लायंसेज हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, एंड एज इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन आपका जो करंट है वो सेपरेट हो जाता है चैनल्स में ऑन द बेसिस ऑफ कितना रेजिस्टेंस है, उतना अमाउंट ऑफ करंट विल बी फ्लोइंग अक्रॉस दी सर्किट. मोर रेजिस्टेंस लेसर विल बी दी करंट, लेसर रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट उसके अक्रॉस फ्लो होगा. नाउ इन द केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो लेसर होता है देन द रेजिस्टेंस दैट इज़ देयर इन दी सीरीज़. सीरीज़ में जो R1 आपका RS होता है दैट इज़ R1 प्लस R2 प्लस R3. इन द केस ऑफ पैरेलल इट इज़ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो जो टोटल रेजिस्टेंस है इस पैरेलल का वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू सीरीज़. सो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न वाई वी सेलेक्ट parallel resistance in comparison to series resistance. Now factors जिनके ऊपर हमारा resistance क्या बोलते हैं डिपेंड करता है. पहला फैक्टर है लेंथ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अगर लेंथ 2 टाइम्स इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स इंक्रीज़ होगा. लेंथ अगर हाफ टाइम डिक्रीज़ हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी हाफ टाइम डिक्रीज़ होगा बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. then it is inversely proportional to the area of cross section. okay, so inversely proportional है. अगर area of cross section 2 times increase हो रहा है तो आपका जो resistance है वो half time decrease हो जाएगा. so remember in that manner it is inversely proportional. then it also depends upon the nature of material. material कैसा है, is it a good conductor, bad conductor, सेमी कंडक्टर कैसा मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है. तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिलता है R इज इक्वल टू रो L/A. इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. ठीक है. देन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. अकॉर्डिंग टू जूल्स जो हीट होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, it is directly proportional to the resistance, and it is directly proportional to the temperature time, not temperature, time. It is directly proportional to time, which means that अगर करंट इंक्रीज हुआ हीट इंक्रीज होगा अप्लायंस में, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ हीट इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ तो हीट इंक्रीज होगा. ज़्यादा करंट जा रहा है ज़्यादा हीटअप हो जाएगा डिवाइस, ज़्यादा रेजिस्टेंस है ज़्यादा हीटअप हो जाएगा, ज़्यादा टाइम के लिए अगर आपने कोई भी अप्लायंसेस यूज़ किया है तो उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा. देयर आर 2 मेजर एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो आपको याद रखना है. पहला है इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब में ये जो फिलामेंट होती है इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेटल कॉल्ड टंगस्टन. ठीक है. अभी ये जो मेटल है इट डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर. जनरली मेटल्स क्या करते हैं हाइयर टेम्परेचर में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बट ये जो मेटल है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है हाइयर टेम्परेचर में, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है. दैट इज़ अराउंड 33,080 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस. तो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, कितना भी हाई हीट प्रोड्यूस हो ये ईजिली ब्रेक नहीं होगा. देन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ेस. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ेस जैसा मैंने आपको बताया इट्स अ सेफ्टी डिवाइस. ये हमारे अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. फ्रॉम एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट, इन केस अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो उससे हमें प्रोटेक्शन देता है. दिस सर्किट, जो सर्किट है इट इज़ मेड अप ऑफ टिन या फिर एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन का बना रहता है. या तो ये प्योर टिन का होता है या तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, और हमेशा इसे हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं. ठीक है. क्योंकि सीरीज़ में डायरेक्टली सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है. तो जैसे ही ज़्यादा अमाउंट, अगर ये 2 एम्पियर का फ्यूज़ है और अगर 2.5 या 3 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है इसके अक्रॉस, तो इसका जो वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो. ठीक है. इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट. तो जैसे ही 2 से ज़्यादा एम्पियर ऑफ करंट फ्लो होगा ये हीट अप हो जाएगा और ये जो वायर है ये टूट जाएगा एंड इट विल स्टॉप द सर्किट there itself. So that was human application of heating effect of electric current. तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लो. यहाँ पे एक पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके फॉर्मूलेज आपको याद रहने चाहिए जो मैंने आपको पहले ही बताया था. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ गिवन यू ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. पावर पूछा है, गिवन लिखो एंड अकॉर्डिंगली यू पुट द फॉर्मूलाज एंड सिंपल मैथ्स है उसके बाद, नथिंग एल्स. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन आई. ह्यूमन आई में आप थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए ह्यूमन आई का एंड पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई. देन वी हैव पावर ऑफ अकोमोडेशन. पावर ऑफ अकोमोडेशन इज़ नथिंग बट द एबिलिटी, इट इज़ द
ability of eye lens to adjust itself with the help of ciliary muscles. तो हमारे जो सिलरी मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और उससे क्या होता है, आप दूर का या फिर पास का इमीडिएटली देख सकते हो. दैट इज़ पावर ऑफ एकोमोडेशन, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स. नाउ डिफेक्ट्स ऑफ आई, वेरी वेरी एसेंशियल. सबसे पहला डिफेक्ट है मायोपिया, जिसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस. नियर साइटेडनेस का मतलब होता है पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है. कॉजेज़ ऑफ मायोपिया, मायोपिया का सबसे पहला कॉज होता है जो आपका आई बॉल का साइज़ है, इंक्रीज़ इन दी साइज़ ऑफ आई बॉल. अब मायोपिया में होता क्या है, इमेज जो है वो फॉर्म होती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना. इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना. सो एज इमेज इज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ रेटिना, उसका सिंपल कॉज ये हो सकता है कि जो आपका आई बॉल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया है. सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है, जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज़ हो गई है, उसकी वजह से आपका जो इमेज है वो आई बॉल के सामने बन रहा है. जैसे आप ये देख सकते हो, दिस इज़ दी रे डायग्राम ऑफ एन मायोपिक आई. इमेज कहाँ बन रही है, इन फ्रंट ऑफ दी रेटिना. तो या तो आई बॉल का साइज़ बढ़ गया है या तो फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो गई है. अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस. यू विल यूज़ कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस का साइन होता है नेगेटिव. प्लीज़ रिमेंबर दिस. यू कैन सी हियर, दिस इज़ द करेक्शन. यहाँ पे आपने कॉनकेव लेंस डाला, तो जैसे ही आप कॉनकेव लेंस डालोगे, कॉनकेव लेंस क्या करेगा, जो भी इमेज बन रही थी इन फ्रंट ऑफ रेटिना उसको पीछे शिफ्ट करेगा ऑन दी एक्चुअल रेटिना. इट विल शिफ्ट द इमेज ऑन दी एक्चुअल रेटिना, डाइवर्ज करेगा वो. ठीक है. Now next we have is hypermetropia. Hypermetropia is farsightedness. farsightedness का मतलब होता है पास का दिखता नहीं है बट दूर का दिखता है. ठीक है, farsightedness दूर का दिख रहा है. Now अभी hypermetropia में क्या होता है, as you can see here in the case of hypermetropic eye, image is formed behind the retina. रेटिना के पीछे इमेज बन रही है. रेटिना के पीछे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ इमेज बन रही है. तो क्या कॉज हो सकता है, सो पहला कॉज तो यही है, या तो मेरे जो आई बॉल है उसका साइज़ डिक्रीज़ हो गया है. कॉजेज़, आई बॉल का जो साइज़ है, साइज़ ऑफ आई बॉल हैज़ डिक्रीज्ड, उसकी वजह से इमेज पीछे बन रही है, राइट. और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, जो फोकल लेंथ है वो बढ़ गया है. आई का जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज़ हो गया. तो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन्स इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना. अभी इसका करेक्शन क्या है, यू कैन करेक्ट इट बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स. यहाँ पे एक्स है, एक्स को आप सीधा करोगे तो इट लुक्स लाइक प्लस, तो कॉन्वेक्स लेंस का साइन होता है पॉजिटिव. तो आप यहाँ देख सकते हो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है. सो ये कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, ये आपके आई का जो नियर पॉइंट है वहाँ से रे को कैप्चर करता है और उसको कन्वर्ज करता है ऑन दी एक्चुअल रेटिना. सो दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया. देन वी हैव प्रेसबायोपिया. जनरली ओल्ड एज में पीपल को होता है, ओल्ड एज पीपल विल हैव. इन दिस व्हाट हैपेंस इज उनको पास का नहीं दिखता है और दूर का भी नहीं दिखता है. ठीक है, ना ही वो पास का देख पाते हैं ना ही वो दूर का देख पाते हैं. सो दैट इज़ योर प्रेसबायोपिया. Okay, and the reason or the causes why it is causing, it is due to weakening of ciliary muscle. आपके सिलरी मसल्स जब वीक हो जाते हैं तो वो आपके आई लेंस को अकोमोडेट नहीं कर पाते प्रॉपरली, उनका फोकल लेंथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर पाते हैं. उसकी वजह से जो इंडिविजुअल है उसको पास का भी नहीं दिखता है और दूर का भी नहीं दिखता है. करेक्शन, इसका करेक्शन है बाईफोकल लेंस. बाईफोकल लेंस में हम यूज़ करते हैं बोथ कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस. ये जो नीचे वाला साइड होता है ये नियर के लिए होता है और ऊपर वाला जो साइड होता है वो डिस्टेंट व्यू के लिए यूज़ किया जाता है. मतलब ऊपर है कॉनकेव और नीचे है कॉन्वेक्स लेंस. सो दिस इज़ योर प्रेसबायोपिया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. तो सबसे पहले हम एक प्रिज्म ड्रॉ करेंगे.
It's a prism. So this here is an incident ray of light. This is your incident ray. तो ये इंसिडेंट रे जब फॉल करती है ऑन द सर्फेस ए बी ऑफ द प्रिज्म, as it is moving from rarer to denser medium, it will bend towards the normal. Bending होगी towards the normal. This is the rule. It will bend towards the normal and then यहाँ से वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो यहाँ पे बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इन दिस मैनर इट विल शो रिफ्रैक्शन. नाउ जब मैं इन इंसिडेंट रे को, और ये जो मेरी रे है जो बाहर आ रही है उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, इन दोनों रेज को एक्सटेंड करूँगी बैकवर्ड में तो मुझे क्या मिलेगा? यू विल सी दैट दीज रेज आर मीटिंग एट अ पॉइंट एंड वेयर दीज रेज आर मीटिंग दे आर मेकिंग एन एंगल कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन. ठीक है, सो दिस इज़ एन एंगल ऑफ डिविएशन. एग्ज़ाम में आता है ड्रॉ करने के लिए एंड आइडेंटिफाई करने के लिए एंड लेबल करने के लिए एंगल ऑफ डिविएशन एंड अदर एंगल्स. यहाँ पे दिस इज हियर is angle of incidence, here this is angle of emergent. Okay, so you have to mark these angles. This one is angle of deviation. Next we have dispersion of white light. Dispersion का मतलब होता है splitting of light, splitting of white light into 7 colors. Okay, that is your dispersion. So white light को जब आप 7 colors में split करते हो उसको dispersion बोलते हैं. As you can see here in this picture, this is your white light. White light जैसे ही ग्लास के अंदर जाती है तो जो white light है वो split हो जाती है 7 different colors में. That is your Webcure. In this format it splits into 7 different color. जो violet होता है it is most deviated and it has least wavelength, while जो red है it is least deviated, सबसे कम deviation होता है, सबसे ऊपर है obviously, and maximum wavelength होता है. और यही एक reason है जिसकी वजह से हम सिग्नल्स में, डेंजर सिग्नल्स में रेड कलर ऑफ लाइट यूज़ करते हैं, बिकॉज रेड कलर इज़ लीस्ट डिविएटेड एंड इट हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ, सो इट कैन ट्रैवल टू अ लार्जर डिस्टेंस. नेक्स्ट वी हैव इज़ रेनबो फॉर्मेशन. रेनबो फॉर्मेशन आप देख लीजिए. रेनबो फॉर्मेशन में जो वाटर ड्रॉपलेट होता है, दिस वाटर ड्रॉपलेट एक्ट्स लाइक अ स्मॉल प्रिज्म. ये प्रिज्म की तरह एक्ट करता है और प्रिज्म क्या करता है? वाइट लाइट को डिस्पर्स करता है इनटू 7 कलर्स. नाउ हियर एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आपका हो रहा है रिफ्रैक्शन. वाइट लाइट वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जा रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट होगा हियर एट दिस पॉइंट एंड इट इज़ गेटिंग रिफ्रैक्टेड एज वेल एज इट इज़ गेटिंग डिस्पर्स्ड इनटू 7 डिफरेंट कलर्स. नाउ एट दिस पॉइंट, पॉइंट बी, यहाँ पे हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन. अगर यहाँ रिफ्रैक्शन होता तो लाइट रे यहीं से बाहर चली जाती, बट यहाँ वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लाइट रे सारी की सारी इधर आ रही है. एंड एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट सी अगेन रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड लाइट रेज आर कमिंग आउट ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉर्मिंग 7 बैंड ऑफ कलर्स. सो टोटल 3 फिनोमेना हो रहे हैं यहाँ पे, रिफ्रैक्शन, dispersion and internal reflection. बहुत बार MCQ में आए हैं ये तीनों फिनोमेना, तो आपको याद रखना है रेनबो फॉर्मेशन में ये तीनों फिनोमेना होते हैं. Now some common examples of atmospheric refraction and scattering of light. Atmospheric refraction is nothing but refraction taking place in the air. एयर सरफेस की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं. स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है जो हमारे एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इन पार्टिकल्स पे जब लाइट फॉल करती है तो लाइट स्कैटर हो जाती है इन डिफरेंट पाथवेज. दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. So common phenomena that takes place because of atmospheric refraction is twinkling of stars, apparent position of the due to atmospheric refraction. मतलब कि स्टार आपको थोड़ा सा हाइयर अप में लगता है, ऐसा लगता है एक्चुअल स्टार यहाँ होता है बट हमें लगता है यहाँ पे प्रेजेंट है. सो दैट इज़ अपेरेंट स्टार पोजीशन. देन फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर. हॉट एयर के अक्रॉस अगर आप किसी भी
सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको हिलता हुआ दिखता है, मूव होता हुआ दिखता है, बट एक्चुअली वो मूव नहीं हो रहा है. इट इज़ मूविंग बिकॉज ऑफ दी layers, hot layers of the atmosphere. Then advanced sunrise and delayed sunset भी atmospheric refraction की वजह से होता है. इसमें से कुछ भी पूछा जाए, right atmospheric refraction, you will get marks. Not full marks for explaining, but अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो आप atmospheric refraction लिख दीजिए. At least you will get 1 mark और half mark depending upon कितने मार्क का क्वेश्चन है. Then scattering of light के common phenomena है blue color of the sky. It is again because of the scattering of light. डेंजर सिग्नल जो रेड कलर के होते हैं वो भी यही फिनोमेना यूज़ करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. एंड जो टिंडल इफेक्ट है वो भी होता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो ये आपको याद रखना है ओवरऑल इस चैप्टर में. एक और क्वेश्चन आता है कभी कभी यहाँ से, दैट इज़ वाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल. तो स्टार्स ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं. तो इसका रीज़न है जो प्लैनेट्स है they are bigger in size in comparison to that of the star and they are closer to us. So as they are bigger and closer to us तो वो twinkling effect इतना relevantly दिख नहीं पाता है. ठीक है, जो effect है twinkling effect, refraction effect है वो nullify हो जाता है. That is why it appears as if planets are not twinkling but stars are twinkling. Okay, और जो sky है या फिर जो आपका space है, स्पेस इज़ डार्क और ब्लैक कलर है. एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस को देखेगा तो उसे ब्लैक कलर का दिखेगा. रीज़न क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है. बिकॉज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर इन दी स्पेस. उसकी वजह से एटमॉस्फेयर नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा. और जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही नहीं हो पा रहा है तो आपको कोई भी कलर नहीं दिखेगा. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आपका जो स्पेस है वो डार्क कलर का होता है या फिर ब्लैक कलर का होता है. Now moving on to the last chapter, that is light, refraction and reflection. First of all, you should know the definition of reflection. Reflection is bouncing back of light when it falls on a polished surface. ये mirror है, यहाँ पे incident light fall करेगी तो ये light क्या होगी? Reflect back हो जाएगी. Now laws of reflection. First law है angle of incidence is equal to angle of reflection. Second है incident ray, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है, ये तीनों के तीनों दे ऑल लाई इन सेम प्लेन. ये तीनों, ये आप जो प्लेन देख रहे हो, ये तीनों सेम प्लेन में प्रेजेंट होते हैं. दिस इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ आपको मिरर्स पता रहने चाहिए, विच वन इज़ कॉनकेव, विच वन इज़ कॉन्वेक्स. तो यू कैन सी हियर, अगर ये ऐसा है, ऐसा केव जैसा है, एंड दिस आउटवर्ड इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और लाइट रे ऐसे केव में जाके घुस रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर. दिस इज़ योर कॉनकेव मिरर. और इसका उल्टा होता है कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ होता है. दिस इज़ द रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड जो है, कर्व्ड आउटवर्ड जो सरफेस है, दैट इज़ एक्टिंग एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इट इज़ योर कॉन्वेक्स मिरर. नाउ रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, कभी कभी ये रूल्स बनाने को आ जाता है. तो यू कैन क्लियरली सी दिस इज़ पोल, दिस इज़ फोकस, दिस इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो फर्स्ट रूल ये है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इफ़ इट इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी. ये फर्स्ट रूल है. सेकेंड रूल ये है कि अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस. थर्ड रूल ये है, अगर वो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो कहीं नहीं जाएगी, इट विल रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ. एंड थर्ड रूल ये है, अगर वो एंगल बना के फॉल कर रही है ऑन पोल, इफ़ इट इज़ फॉलिंग ऑब्लिकली ऑन द पोल मेकिंग सम एंगल कॉल्ड एंगल आई, दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, विथ सेम एंगल आर बनाते हुए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इट विल मेक एन इक्वल एंगल. सो सेम रूल कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्केव मिरर के केस में फॉलो होते हैं. नाउ दीज आर सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर्स. देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज़. सबसे पहला पॉसिबिलिटी है, अगर इमेज आपका जो ऑब्जेक्ट है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट एट इन्फिनिटी, इमेज बनती है फोकस में, इमेज इज़ हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज बहुत छोटी होगी और वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड. इट विल बी ऑब्टेन्ड आपको
यहाँ मिलेगी, इस तरफ पे मिलेगी, and you can obtain it on the image, on the screen as it is obtained on a screen, that is why it is known as real image. Then आप उसको रखोगे beyond C, इन्फिनिटी से थोड़ा और पास लेकर आए beyond C. जब आप beyond C पे लेकर आए, इमेज बनेगी between center of curvature and focus. Image will be diminished and again it will be real and inverted at C. नेक्स्ट आप ऑब्जेक्ट को रखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, साइज सेम होगा इमेज और ऑब्जेक्ट का, और इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड. जब आप उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे तो अब उल्टा होगा यहाँ से. देन इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, साइज बढ़ेगा धीरे धीरे, और ऑब्जेक्ट का नेचर, जो इमेज का जो नेचर होगा, दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. एट फोकस, जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, साइज हाईली इनलार्ज्ड होगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड. दिस लास्ट केस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट केस इज़ द केस वेयर यू आर कीपिंग ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस. ठीक है, और जब आप उसे पोल और फोकस में रखते हो तो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर इट विल बी इनलार्ज्ड एंड it will be virtual and erect. You cannot obtain this image on the screen, hence the image is virtual and it will be straight erect. Very very important. इसका यूज़ हम करते हैं शेविंग मिरर में, इस प्रॉपर्टी का यूज़ मेकअप मिरर्स में भी इस प्रॉपर्टी का यूज़ होता है. नेक्स्ट वी हैव यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर. 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से. मेकअप मिरर्स में यूज़ होता है, डेंटल मिरर के लिए यूज़ होता है, टेलीस्कोप के अंदर भी यूज़ होता है ये, और जो लाइट हाउसेस में मिरर्स होते हैं वहाँ पे भी हम इसे यूज़ करते हैं. आपके जो टॉर्चेस का हेडलाइट है, व्हीकल का हेडलाइट है, इन सब में भी सेम मिरर यूज़ होता है, कॉन्केव मिरर. देन इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. पहली पॉसिबिलिटी है इन्फिनिटी. इन्फिनिटी में रखोगे तो आपको इमेज मिलेगा. कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज फोकस में मिलता है. पॉइंट साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. देन जब आप इसे इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखोगे तो आपको हमेशा इमेज मिलेगा बिटवीन पोल एंड फोकस. इट विल ऑलवेज बी बिहाइंड द मिरर, साइज विल बी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो कभी भी आपको छोटे साइजेस के ऑब्जेक्ट अगर दिख रहे हैं किसी भी मिरर में, तो आप समझ जाओ कि वो कॉन्वेक्स मिरर है. अगर आप मिरर के पास जा रहे हो, दूर जा रहे हो, किसी भी जगह पे खड़े हो, इफ़ यू आर ऑलवेज गेटिंग स्मॉल साइज, देन इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर. अब कॉन्वेक्स मिरर यूज़ कहाँ होता है? आप उसे रेयर व्यू मिरर की तरह यूज़ करते हो व्हीकल्स के रेयर व्यू में, सो दैट साइजेस छोटा दिखता है और लार्ज एरिया कवर हो सकता है. सिमिलरली अगर आप मॉल्स में गए हो या फिर किसी कपड़े की दुकान में गए हो, तो वहाँ पे भी कॉन्वेक्स मिरर्स ऐसे लगे रहते हैं, सो दैट दे गिव यू अ वाइड रेंज ऑफ व्यू. ऑब्जेक्ट्स विल बी लुकिंग स्मॉलर बट इट विल कवर वाइड एरिया. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइन कन्वेंशन. वेरी वेरी एसेंशियल. जस्ट रिमेंबर, इसको आप याद रखो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज साइन कन्वेंशन. इसको आप याद रखो विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्लेन. ये आपका एक्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइन कन्वेंशन. इसको आप याद रखो विद द हेल्प ऑफ अ कार्टेशियन प्लेन. जहाँ पे भी मिरर और लेंस रखा हुआ है वहाँ पे एक वाई एक्सिस बना दो. ठीक है, अभी आपको पता है एक्स वाई ये कार्टेशियन प्लेन है. ये वाला जो प्लेन होता है ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ये वाला जो प्लेन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये वाला जो प्लेन होता है वो नेगेटिव नेगेटिव होता है, और ये वाला जो प्लेन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है. तो whenever an object is kept, always you will see object is placed here. ठीक है, कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे placed है, ऑब्जेक्ट या फिर इमेज, then it will always have a negative sign associated to it. अगर कोई भी इमेज यहाँ पे बन रही है on this side, then it will always have a positive sign associated to it. कोई भी इमेज अगर ये जो आपका एक्स एक्सिस है इसके नीचे बन रही है तो उसका साइन होगा नेगेटिव. और कोई भी चीज़ अगर आपके कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस के ऊपर बन रही है तो उससे एसोसिएटेड जो साइन होगा वो होगा पॉजिटिव. ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट.
This is your Cartesian plane. On the basis of that, you will find the values and signs. You will find the signs associated with image formation, distance of the image, distance of the object, height of the image, height of the object. उसके basis में आप साइन देख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा ऑब्जेक्ट हमेशा इधर होता है ऑन दिस साइड, तो इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट विल हैव नेगेटिव साइन. ओके, इफ इमेज इज फॉर्म्ड हेयर ऑन दिस साइड, देन जो साइन एसोसिएटेड होगा इट विल बी नेगेटिव. ओके, देन अगर इमेज यहाँ बन रही है ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, देन इट विल हैव अ पॉजिटिव साइन. अगर इमेज ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर बन रही है तो हाइट जो होगी उसके ऊपर भी पॉजिटिव साइन होगा. बट अगर इमेज एक्स एक्सिस के नीचे बन रही है तो जो हाइट होगी उसके लिए भी साइन होगा नेगेटिव. मिरर फॉर्मूला, एम फॉर मिरर, एम फॉर मोर. तो मिरर फॉर्मूला में आप प्लस साइन यूज़ करते हो. मिरर फॉर्मूला इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. और इसका अपोजिट साइन हम यूज़ करते हैं मैग्नीफिकेशन में, दैट इज़ -v/u. ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए. फॉर्मूलेज लिखने के आपको मार्क्स मिलते हैं. यू शुड बी एबल टू रिमेंबर द फॉर्मूला. देयर इज़ वन मोर फॉर्मूला, दैट इज़ रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f. अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके फोकल लेंथ का वैल्यू फाइंड आउट करो पहले, एंड उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो मिरर फॉर्मूला में. यू विल गेट योर आंसर. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. रिफ्रैक्शन इज़ बेंडिंग ऑफ लाइट जब वो ट्रैवल करता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. जब भी लाइट ट्रैवल करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो हमेशा बेंडिंग होगी. एज यू कैन सी हियर, इट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो बेंडिंग इज टूवर्ड्स दी नॉर्मल. आप यहाँ क्लियरली दे सकते हो, दिस इज़ योर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. इट इज़ बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, एंड एज इट इज़ बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सिमिलरली जब वो ट्रैवल करेगा फ्रॉम denser to rarer medium, okay. So in that case आपका जो bending होगा it will be away from the normal, okay. Bending will be away from the normal when it is traveling from denser to rarer medium. Now refraction through a glass slab, जो अभी मैंने आपको बताया उसी को यूज़ करके हम refraction through a glass slab देखेंगे. आप देख सकते हो ये air है, ये glass है, और again air है. This is your incident ray of light. When it travels, as it is moving from rarer to denser medium, bending is towards the normal, or this angle here is your angle of refraction. Then at this point again the light ray, refracted ray, will come out of the glass slab, and now when it is coming out it is moving from glass to air, that is denser to rarer medium. As it is moving from denser to rarer medium, it will bend away from the normal, and this ray is known as emergent ray. And ये जो angle है इसको हम बोलेंगे angle of emergence. ये वाला जो ray है आपका, ये जो emergent ray है और ये जो reflect incident ray है, इसको आप extend करोगे backward में तो you will see that ये दोनों एक दूसरे से parallel होते हैं, and इसको हम बोलते हैं lateral displacement. नेक्स्ट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता है. जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकली डेंसर होगा और मोर बेंडिंग विल बी देयर इन दैट केस. नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लाइट के स्पीड को चेंज करता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एयर है, यहाँ पे डायमंड है या फिर ग्लास है, ठीक है, डेंसर मीडियम है. तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज, एयर में अगर लाइट 3 × 10⁸ पावर मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है तो जैसे ही वो डेंसर मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी. अब कितनी कम होगी वो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, एंड यू विल गेट टू नो हाउ मच ऑप्टिकली डेंसर द सेकेंड मीडियम इज़ विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. ओके,
नाउ देर इज़ वन मोर फॉर्मूला. अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड आउट करना है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है जब लाइट एयर से किसी स्पेसिफिक मीडियम में जा रही है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करोगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दी स्पेसिफिक मीडियम. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है. एंड आप मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट दिया होगा तो आप फॉर्मूले में पुट करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हो. और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट स्पेसिफिक मीडियम भी फाइंड आउट कर सकते हो. सो दिस फॉर्मूला इज़ इम्पॉर्टेंट. डेफिनेटली 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, आया है, बहुत बार आया है. Then what are the different types of images that will be formed by convex lens? ये आपका convex lens होता है और ये आपका concave lens होता है. So convex lens में भी 6 केसेस होते हैं. पहला है infinity. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनता है f2 फोकस पे, राइट. f2 फोकस इज़ दी दिस फोकस, तो इमेज यहाँ से जाएगा एंड इट विल बी फॉर्म्ड ऑन दी f2 फोकस. तो f2 फोकस पे जो इमेज बनता है इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज एंड इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड बिकॉज आप उसे स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो. व्हेन इट इज़ केप्ट बियॉन्ड 2f1 इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2. दूसरे साइड पे डिमिनिश्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड. एट 2f1 इट विल बी फॉर्म्ड एट 2f2, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड. बिटवीन f1 एंड f2f1 beyond 2f2 enlarged, real and inverted. At f1 infinity पे बनेगा and it will be real and inverted. This is very important. जब आप उसे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो तो इमेज उसी साइड में बनती है, लाइक दिस. दिस इज ऑप्टिकल सेंटर और फॉर एग्जांपल ये फोकस है. इमेज अगर यहाँ रखा तो क्या होगा, इमेज विल बी फॉर्म समवेयर हियर इटसेल्फ, ठीक है, ऑन द सेम साइड एंड दिस इमेज विल बी enlarged and it will be virtual in nature. Then image formed by a convex lens, this is a image formed by a concave lens, this is your concave lens. 2 केसेस होते हैं. इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, ली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट. और जब वो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में है तो इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, हमेशा इस साइड पे बनेगा एंड इट विल बी डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कॉन्केव लेंस जो होता है वो होता है CCLD, कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग, वो डाइवर्ज करता है लाइट रे को, और उसका उल्टा होता है कॉन्वेक्स विच इज़ कन्वर्जिंग इन नेचर. लेंस फॉर्मूला L फॉर लेंस, L फॉर लेस. लेस का मतलब माइनस, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. मैग्निफिकेशन में उल्टा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ v/u. दिस विल बी दी मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंस. जहाँ पे भी क्वेश्चन में लेंस दिया हुआ है, सिंपली यू राइट द फॉर्मूला ऑफ लेंस, बोथ लेंस फॉर्मूला एज वेल एज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. देन वी हैव पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f इफ f इज़ गिवन इन मीटर. अगर f सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो पावर इज इक्वल टू 100/f व्हेन योर f इज़ इन सेंटीमीटर. पावर इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, x है तो पॉजिटिव है, और इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर. यू हैव टू रिमेंबर ऑल दी स्मॉल डिटेल्स, वेरी एसेंशियल. आप ये सारा कुछ एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए. अकॉर्डिंग टू योर नीड्स यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड एंड यू कैन री रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स